So, have you met somebody whose vibe is really infectious and it's irresistible to connect and have fun around them? I think लोग नहीं मिल पाते ऐसे लोगों से, and I had the opportunity to meet somebody whose vibe was really infectious. उनसे बात करे बिना ना रहा नहीं गया. So I knew him for like a long time, but meeting him had a great vibe, and I connected with him really well. So I'm talking about none other than Delhi's favorite food blogger. So I have on my podcast Mr. Tikku, who spreads smiles basically, and that's the best description I can give it to anybody. And he kind of knows कि लोगों से मिलके वो जो वार्मथ देनी है इस दुनिया में जहाँ पे लिटरली लोग बात करने के लिए रेडी नहीं होते, दे आर स्ट्रेंजर्स, but he manages to spread smiles all over the internet, and wherever he goes he takes all those smiles, and उनकी जो warmth है that is really infectious. So welcome Tikku ji on our show, and I'm Jay, thank you very much for your kind words, and you are a beautiful human being yourself inside out. So happy to be on this podcast, happy to have known you, and happy to call you a friend. Thank you so much. And I'm really glad, and I'm telling something really interesting to my audience and you as well, that you are amongst first few people I am starting my podcast with. And I loved meeting you. So background story in short, we did not meet in Delhi. We met in Boston, and we were there at one of the conference in Harvard, and that's how we connected, and we planned finally to meet. And I can't express how happy I was after meeting you, and बहुत मजा आया आपसे मिलके, and really a pleasure talking to you on my podcast and letting people know about a lot deeper insights about who you are and what you do. Thank you, Ji. Honored and feel loved. ठीक है टिक्कू जी, not wasting your time and audience who is watching us. So I want to know few things first. हर कोई जब सक्सेसफुल होते हैं तो बात करता है कि सक्सेस की स्टोरी क्या है, लेकिन बहुत कम लोग बताते हैं खुल के about how they started, what was your background story, what led you to create your personal brand. बिकॉज आज टिक्कू जी को सिर्फ दिल्ली या इंडिया में नहीं, यूएस में भी लोग जानते हैं. थैंक यू जी, थैंक यू। और अपना बैक स्टोरी की बड़ी सिंपल है, सिंपल सा इंसान हूँ, सीधा सा इंसान हूँ, दिमाग का कम इस्तेमाल करता हूँ, दिल से ज्यादा सोचता हूँ, दिल की बात ज्यादा मानता हूँ। एंड बेस्ट पार्ट क्या है कि कभी भी अपना दुख नहीं हुआ कि यार दिल की बात क्यों मानी। लाइफ हैज बीन लाइक अ सीसॉ, इधर लिए गए, कभी उधर, कभी ऊपर, कभी नीचे। बेस्ट पार्ट है कि जितने लाइफ के फेजेस हुए, दे हैव बीन ब्यूटीफुल फेजेस। कहीं पे ये रिग्रेट नहीं है किसी टाइप का। फूड ब्लॉगिंग कैसे हुई है? सिंपल है, आई हैव बीन लाइक, जैसे हमें बताते हैं कि अच्छा एक बच्चा क्या होना चाहिए, सो आई ऑलवेज ट्राई टू बिकम एन आदर्श बच्चा, जबकि दिल कहता नहीं यार, राइट पोएट्री, गो एंड मीट पीपल, ऐसे घूम जाओ लोगों के बीच में, कुछ अलग करने की कोशिश करो। बट देन यू रियलाइज दैट उस चीज के लिए मेहनत ज्यादा लगती है, बिकॉज व्हेन यू आर डूइंग समथिंग ऑफ योर ओन एंड इट इज नॉट प्रूव्ड, एंड देन देयर आर आल्सो पीपल अराउंड यू अक्रॉस हु वुड से कि नहीं यार ये गलत है, एंड आपको ही पता है कि भाई दुनिया तो कुछ और करके खुश और हैप्पी है, एटलीस्ट दैट यू अज्यूम। तो आपको लगता है कि नहीं यार, कहीं ना कहीं अपना हम ही गल जा रहे हैं। And I kept going from what I wanted to become to what people want you to become, and that has been a life journey like a seesaw. When I mentioned it was only around 2010 that I realized कि यार मतलब ना जिंदगी औरों के हिसाब से जी के को जी ली, लेकिन मजा नहीं आया, तो अपने हिसाब से जी लेते। एंड देन आई डिसाइड लेट मी क्रिएट माय ओन रूल्स, फॉलो माय ओन रूल्स। जो दिल कहेगा वो मान लेंगे, क्या हो जाएगा, 2 साल की इनकम नहीं आएगी, 2 साल अपना आई नॉट ग्रो to say so, and I did not do anything for 2 years. I just kept deep diving within myself, that who am I, what is the purpose of life, को ऑब्जर्व करना और ज्यादा शुरू कर दिया अच्छे से। एंड तब क्या हुआ, सेम टाइम पे जो था फेसबुक के ग्रुप्स आ गए, एंड फेसबुक ग्रुप में लाइक माइंडेड पीपल स्टार्ट कमिंग टुगेदर। इनको अपना साइकिलिंग का शो, म्यूजिक का शो, गाने का शो, एंटरप्रेन्योर्स है, खाने का शो, घूमने का, फोटोग्राफी का शो, एंड मुझे इनमें से काफी शौक थे। एंड मैं कहा अरे वाह, अब तक तो मैं अकेले अपना इसको फुलफिल करने की कोशिश करता था, बट नोबडी अप्रिशिएटेड मी अराउंड मी। आप पोइट्री लिख लो, आपके 5 लोग ही हैं दोस्त और घर वाले, शायद उनको सुनाओगे, उनको नहीं पसंद आ रहा, तो आपको लग रहा है आप में कमी है, बट दैट इज नॉट द केस। जो में और 5 लाख लोग हो रहे हैं, एंड यू डोंट हैव टू ब्लेम दोस 5 पीपल इन योर लाइफ।
तो तब मुझे लगा, अरे मेरे जैसे तो बहुत सारे लोग हैं। हमें सिखाया गया कि भैया कैसे आप किसी से कुछ ले सकते हो, कैसे कमाओ, कैसे कमाओ। कभी कोई ये नहीं कहता कि देना कैसे है। दैट वाज़ द फेज़ आई आल्सो रियलाइज़ कि भैया अपना पूरी ज़िंदगी गुज़ार दी खुशियाँ बटोरने में। बाद में पता चला खुश तो वो थे जो खुशियाँ बाँट रहे थे। सो आई रियलाइज़ कि लाइफ़ का जो असली मकसद है खुशियाँ बाँटना है। एंड आई स्टार्टेड थिंकिंग इट्स मोर अबाउट गिविंग देन टेकिंग। एंड वो एक फंडा भी बना लिया लाइफ़ का। एंड आई कैन टेल यू वन थिंग, लाइफ हैज बीन गुड सिंस देन। कहते हैं ना कि हमारे गीता सार में लिखा है कि कर्म करी जाओ, फल की चिंता मत करो। बट हम फल की चिंता पहले करते हैं, बाद में कर्म कर। बट व्हेन आई एक्चुअली स्टार्टेड जस्ट डूइंग माय कर्म और फल की चिंता नहीं की, बिलीव मी, अनएक्सपेक्टेड लेवल में, अनएक्सपेक्टेड तरीके से, मच मोर देन आई थॉट आई कुड गेट, आई हैव गॉट दैट काइंड ऑफ लव। अमेजिंग। लाइक आपने ये जो बात बोली है, लाइक इसमें जो दो तीन बातें जो मैं कैच करना चाहती हूँ एंड आई वांट टू टॉक अबाउट इज वन, दैट यू सेड, there was a point when you realize you have lived your life according to people, but you are not satisfied, which is a great message out there, because it's really hard to take the decision when you have been doing something, and when you realize you're not happy, then you take the step to make yourself happy and do what you wanted to. जी। एंड सेकेंड थिंग जो आपने मेंशन करी कि स्प्रेडिंग स्माइल्स एंड खुशियां बांटना, आई थिंक यू आर वेरी करेक्ट ऑन दैट पॉइंट कि हमेशा यही सिखाया जाता है कि कैसे कमाना है, कैसे ये करना है, वैसे करना है, बट देना बहुत कम लोगों को पता है। और इतनी खुशी से दिलदार होके देना, स्माइल्स लिटरली। थैंक यू। Like for me it was, I didn't know, I had no expectations कि मैंने आपको भी सिर्फ रील्स एंड इंटरनेट पे देखा। एनर्जी यू हैड वाज रियली रियली पॉजिटिव, कैरिज्मेटिक, एंड आई थिंक ये आपका राज है उस वाइब का। तो मेरा एक्चुअली नेक्स्ट क्वेश्चन यही होने वाला था, जिस जो आपने मेंशन कर दिया कि आपके कुछ चैलेंजेस रहे थे, राइट? तो हम थोड़ा सा अर्ली डेज जब आप ब्रांड बिल्ड कर रहे थे, जैसे आपने बोला 2010 में, व्हाट वर दोज अर्ली चैलेंजेस यू फेस्ड एंड व्हाट वाज योर विजन विद वेयर यू वांट टू गो? ओके, सो आई टेल यू, 2010 में जब मैंने कहा कुछ नहीं करूंगा, एक्चुअली मैंने 2-3 साल कुछ नहीं किया। आई जस्ट रोट, आई ट्रैवल्ड, आई बिकेम पार्ट ऑफ दीज ग्रुप्स, आई लर्नड अ लॉट। बस सिंपल एजेंडा था, कमाना वाज नेवर एन एजेंडा। एंड मैं कोई और बात कहूंगा, पहले भी पर्सनल ब्रांड की बात की, अभी भी अपने ब्रांड की बात की। मेरा एजेंडा कभी ब्रांड बिल्ड करने का था ही नहीं। हम्म। आई वाज जस्ट डूइंग व्हाट आई लाइक्ड एंड ब्रांड अपने आप बिल्ड हुआ है। आई हैव यूज्ड नो रॉकेट साइंस की 2 और 2 करो तो 4 होगा। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ वही किया जो मुझे अच्छा लग रहा था। यस, टुडे व्हेन आई लुक बैक आई रियलाइज किया, हो ये सारे की सारी चीजें मैंने सही की। बट जब कर रहा था उस पीछे मकसद नहीं था, ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा। इट वाज नॉट अ फॉर्मूला। मुझे लगा यार ये मुझे करना चाहिए, मैंने वो किया। एंड आई थिंक ऑटोमेटिकली द ब्रांड गॉट बिल्ड, आई गॉट लव फ्रॉम पीपल अक्रॉस। सो आई थिंक दैट वाज द ब्रांड वाला पार्ट। दूसरा हमने चैलेंजेस की, तो देखो चैलेंज कुछ, बिकॉज आई नेवर went out to become a food blogger, because food blogger was never a profession. A blogger was also not a profession. Just एक profession होता होगा, but मेरी writing कोई ऐसी नहीं है कि मैं कहूँ कि भैया मुझे एक अपना जर्नलिस्ट बनना है, and वो मेरा कोई चांस नहीं था, बनना नहीं। But then when food groups बने, I started writing about my experiences. मुझे observe करना, लिखना अच्छा लगता, तो मैंने वो लिखना शुरू कर दिया। and then people started liking it and अरे वाह क्या बात है, तो आपकी वजह से आज 5 लोग आए खाने के लिए, 10 लोग खाने के लिए आए, तो लगता है कि यार कुछ तो सही कर रहा हूँ, आई एम एंजॉयिंग इट। एंड मैंने कभी चैलेंज सोचा ही नहीं इसको, बिकॉज इट वाज ऑल दैट वाज हैपनिंग इन फन। एंड आई नेवर न्यू, सच्ची कहूं, कि इससे पैसे कमाए जाएंगे, या मैं इससे पैसे कमाना चाहता हूँ। ये तो बस अपने राह पे आप चलते गए एंड पीपल साइड कमिंग योर वे, यार आपने जो उनके लिए किया था बड़ा अच्छा लगा, आप हमारे लिए भी कर दो, ये पैसे लो। एंड आई रियलाइज आई वाज गेटिंग पेड फॉर थिंग दैट आई वाज लविंग ऑलरेडी। तो भाई मैं वैसे भी कर लेता, लेकिन लगता बंदा क्योंकि उसको वैल्यू मिल रही है, ही और शी वुड कम एंड पे फॉर इट। देन आई सेड ओह दैट्स नाइस। तो पैसे के लिए कभी शुरू नहीं किया। आई नेवर न्यू टुडे कि अपना मेरा ऐसा प्रोफेशन बन जाए, आई विल बिकम अ फूड ब्लॉगर। फूड ब्लॉगर पैसा कमाता है खाने के। आई थिंक इट वाज नेवर अ चैलेंज, इट वाज नेवर अ जर्नी। आई जस्ट केप्ट वॉकिंग, और कहते हैं ना कि हम चलते रहे, कारवां बनता गया, हम अपने आप को खुश करते गए, साथ में दुनिया भी खुश होती गई। एब्सोल्युटली, आई थिंक आपने एकदम यू नो ऑन पॉइंट बात। जस्ट टू गिव यू अ लिटिल ब्रीफ, मैंने भी कभी फूड ब्लॉगिंग को एज अ प्रोफेशन नहीं लिया, एंड मुझे पता भी नहीं था कि, आई थिंक आपने और मैंने ऑलमोस्ट 1 आध 2 साल के आसपास ही स्टार्ट। सो व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग इट, मेरे को नहीं पता था कि ये भी एक प्रोफेशन होता है, क्योंकि दिल्ली में इट वाज नॉट प्रोमिनेंट दैट यू आर फाइंडिंग ब्लॉगर्स एवरीवेयर 2012 में एंड 13 में।
So you are right. I also never took it as a, a profession. And you said, this is what you loved, and जी that's what you gave you all the smiles and love from people and community around. So uh, एक चीज मैंने आपके कंटेंट में जैसे नोटिस करी है जी कि आप लिटरली कुछ ना बोल के भी एक स्टोरी टेलिंग करते हो, राइट, अपनी वीडियोस में। एंड जैसे लोग आपको बोलते हैं, लाइक दे फील दैट दे आर एक्चुअली हैविंग फूड विद यू, राइट? जी जी So this is something really commendable. So for example, you said you love what you do, but जब आप कुछ पीस ऑफ कंटेंट शूट, आपका कुछ विजन हो, तो स्ट्रेटजी होती है या कुछ स्ट्रक्चर होता है माइंड में? हाउ डू यू डू दैट? देखो अपना ना सिर्फ एक ही मकसद है जो भी हम कर रहे हैं एवरी डे आई गेट अप विद ओनली वन थिंग कि डू समथिंग व्हिच मेक्स मी हैप्पी सो मेरी खुशी सबसे ज्यादा जरूरी है सेकंड इज दैट हम जो भी करें उसको देखने के बाद जो भी उसको देख रहे हो पे अपना मुस्कान आए और मुंह में पानी आना चाहिए इफ दैट इज हैपनिंग वी आर हैप्पी इफ दैट इज नॉट हैपनिंग वी आर नॉट हैप्पी कई बार होता है कि हम कंटेंट शूट करने गए मजा नहीं आ रहा है वी डम्प दैट रील मतलब होता है मतलब 20-30 में से एक रील होती होगी बट वी डम्प दैट बिकॉज eventually it is the focus and the aim is not to post a reel it or get engagement it is about making people smile how you are helping people are you giving them a solution are you making them are you entertaining them are you building some kind of nostalgia or emotion and that is what we do we have to बस we focus कि इसमें कोई nostalgia है इसमें कोई emotion है nostalgia जगह का हो सकता है खाने का हो सकता है emotion could be it could be different for different people it is always all entertainment and obviously थोड़ा बहुत information आपने दी कि अच्छा जगह कहाँ पर है खाना क्या है ये चीज अपना एग्जिस्ट भी करती है we do something like ऐसा भी होता है which is unique dishes where people are amazed you find those unique dishes and अरे वाह क्या ऐसा भी होता है people don't know because दुनिया अपना लोगों के लिए they have not traveled much और even I see so many things on a daily basis जो लगता है यार ये क्या बात है अगर मुझे पता लगे तो दुनिया को भी पता चलना चाहिए एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, यू आर राइट। सो अब हमने खाने की बात स्टार्ट करी है, तो आई वांट टू नो टू बेस्ट प्लेसेस इन दिल्ली एज पर यू। यू मस्ट हैव एंजॉयड इट irrespective, like taste or whatever you were, loved it, and only two places I would ask जो देखो आपके लिए बहुत ही डिफरेंट रही हो या आपको बहुत ही मजा आया हो, कुछ रिमार्केबल कुछ लगा हो आप। बात की whenever I think of two best food places that comes to my mind are connected with me with my बचपन और लगता था कि भैया अपना बस यही है तो आज भी जब मैं अंदर घुसता हूँ तो वही खुदी है वो जो पुरानी थी अपना स्वाद है एक्चुअली कुछ वेटर्स भी वो हैं जो जब मैं बच्चा था सर्व करते थे आज भी उनकी मूंछों से पहचाने जाते हैं वो सो आई थिंक मेरे लिए हमेशा नॉस्टैल्जिया इमोशन यादें एक स्वीट स्पॉट रहता है and that is why these two will my forever favorite places best part in these people places have not lost their charm also there have been other places which have lost their charm but these two places as of today still hold their charm एब्सोल्युटली, आपने बताइए मीनार आई हैव ट्राइड बट आई हैवंट ट्राइड द नंदी हट्टी छोले भटूरे, बट आपकी छोले भटूरे की रील्स बहुत आती है, मेरे को बहुत पसंद है छोले भटूरे। एंड व्हेनेवर आई यूज्ड टू सी योर रील, एक दो बार तो ऐसा हुआ है कि मेरे को था यार मैंने ट्राई नहीं किया, मेरे को फोमो होने लगा कि इफ यू आर रिकमेंडिंग दैट मीन्स दीज मस्ट बी रियली गुड वर्थ ट्राइंग, बट मैंने नहीं करे थे वो। एंड इन फैक्ट आई वुड वांट टू शेयर वन एक्सपीरियंस विद यू। सो यू एक्चुअली क्रिएटेड अ रील फॉर रॉयल रेस्टोरेंट इन सीपी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी uh, I didn't know about this restaurant, and there was a day when I was in CP and I wanted to try काके दी हट्टी की दाल मखनी and ये सब, but वहां पे बहुत वेटिंग थी। एंड वहीं से while I was crossing तो मैंने जी रॉयल रेस्टोरेंट देखा एंड योर रील केम टू माई माइंड, इसके लिए इसका वीडियो बनाया है, तो आई वांट टू ट्राई दिस बिकॉज इट वुड बी रियली इंटरेस्टिंग। मैंने आपकी वीडियो देखी थी and my brother was with me, and he was like, we have never tried this place and never heard about it. I was like, नहीं मैंने सुना है टिक्कू जी की रील से, तो let's try it. And absolutely it was worth each bite. It was so good. And उसके बाद से तो मुझे लगा कि यार मेरे को तो और मतलब सारी रिकमेंडेशंस ट्राई करनी चाहिए आपकी। you'll enjoy them I will So never say anything which I don't enjoy myself yes, and that's what people and me love about you. So I'm hoping to see Boston content as well. A lot of people would be, expecting that. But थोड़ा बहुत आपने content में give my it god, that was a crazy day actually. हम सबके हाथ shiver कर रहे थे, but we went to eat the dinner. So जी thank you for sharing your experience. So a lot of people actually resonate food bloggers with fancy events and good food.
those kind of, privileges. So if you have to shed light on what's the reality, what goes behind, अगर मेरे को आपसे इस चीज के बारे में पूछना हो, तो what would be your take on that? देखो ऑब्वियसली अपना फूड ब्लॉगिंग लोग अलग अलग रीजन की वजह से आते हैं. समवन कम्स टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, समवन कम्स टू गेट ईट गुड फूड, सम पीपल कम टू नेटवर्क, एंड सम पीपल कम फॉर ग्लैमर. नो डाउट अपना ब्लॉगिंग इंडस्ट्री इन द ग्लैमर काफी है, वेयर इट अट्रैक्ट्स यू, इट गिव्स यू फोमो ऑल्सो. कुछ लोग फोमो के लिए भी आते हैं. सो इवेंट्स, चाहे वो इनॉग्रेशन है, चाहे वो अपना लिकर इवेंट्स है, चाहे वो कुछ भी है, people want to be part of it, and I have had my share of those events. I still go to some of them, but very selective. I think 5 आते हैं, उनमें से एक पे जाता हूँ, because today my perspectives have changed, probably my needs have changed, probably my thought process have changed. But all these events, they are good because they help you network. खाना तो ऑब्वियसली आप उस टाइम जज नहीं कर सकते हो, क्योंकि इनॉग्रेशन या कोई भी इवेंट है तो भैया आप खा रहे हो, 10 लोग पहले तो खाना कम आता है इवेंट्स पे, जितना आ रहा है आपने 2 बाइट खाई, यू कांट जज द फूड. सो इवेंट्स इज नॉट फूड ब्लॉगिंग का पार्ट, आई थिंक. It is just you are there, you are meeting people, you are posting a few stories, which is creating awareness. It does not create a desire or transaction for the restaurant or the eatery, but yes, it creates awareness and it is still good. Baki apna, I have been to many such events in initial days also, but today I don't go much, and I enjoy doing that. थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट एक्चुअली, क्योंकि काफी लोगों को मिथ्स ब्रेक होते हैं जब ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. देखो हर चीज को आई टेल यू, हर स्टेज पे आप किस स्टेज पे हो, आपका माइंडसेट, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से आपकी अलग अलग आपको अलग चीजें ट्रैक, सो या आपको अलग चीजें करनी चाहिए. बट देन देयर इज अ स्टेज व्हेन यू रियलाइज कि नहीं भैया, दिस इज माय नॉट माय मेंटल पीस, दिस मेक्स गिव मी मोर वैल्यू. का फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा, मुझे क्या फायदा हो रहा है, क्या मैं सिर्फ फोमो के चक्कर में. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द वैल्यू एडिशन टू यू, and also to the people you add, or does it help you build a brand? For some people that could also be thing, but to each his or her own. But events have been going on in plenty, things keep changing. I've seen things evolving in the last 13 years. It will keep evolving with each every passing day. Absolutely. Thank you for shedding light on that. So, I have another question. Basically, I know we all actually sometimes work with people or brands जहाँ पे हमें click नहीं होता, like we're not happy working with it. And I'm sure वो सबके profession और life में होता है. So, has anything like that happened with you? And what was that something, for you? I would say if you don't want to take the brand, it's fine because I understand the privacy. But has it happened with you ever? And what was that something that, didn't make you happy working with that? देखो सबसे पहले तो कि whenever we जब मैंने आपको 2010 की बात कर रहा था, so I also made a decision that I will only be surrounded by people, or I only work with people, or only engage with people जहाँ पे मुझे दिल की दिल की खुशी मिल रही है. And even if it's some brand or some client, जिससे पैसा तो आ रहा है लेकिन वो बंदा से फील नहीं आ रही, तो आई डोंट वर्क विद देम. सो दैट इज इवन प्रेवलेंट टुडे, आज 15 साल बाद भी. इफ आई मीट समवन एंड मुझे लग रहा है दिल का कनेक्शन नहीं है, एंड द ब्रांड कुड बी द बेस्ट ऑफ ब्रांड, वी डोंट वर्क विद दैट ब्रांड. That is part number one. Part number two, if we are working with any brand, do our homework, brand कर लेते हैं. It also helps us कि अच्छा लोगों का खाना, then we also do that homework. And that is when we take a decision कि हमें brand करना है कि नहीं. If people are talking negative and brand is reverting in negative, inconsistent है, we don't work with that brand, and even if it's like a paid opportunity, we don't do it. 1-2% जहाँ पे अपना हमको ब्रांड के साथ मजे कहूंगा, वी वेंट टू अ प्लेस एंड डिड इवन एक्सेप्टिंग मनी, एंड मनी अकाउंट में ट्रांसफर हो चुकी थी, वी वर्क ऑन एडवांस बेसिस. जहाँ पहुंचे तो हमें लगा जो फोटो भेजी थी वो किसी और आउटलेट की थी, विच वॉज अ मोर डिसेंट आउटलेट एंड सिटिंग थी. बट ये जिस आउटलेट पे इन्होंने हमें भेजा, बिकॉज वहाँ की पिक्चर्स नहीं थी, नया खुला था, इट वॉज एक्चुअली बैंग ऑन द रोड. एंड हमें लगा यार ये ना हमारे ब्रांड का एंड ना ही हमारे ऑडियंस के साथ मैच करा. ब्रांड की अलग कहानी है, ऑडियंस ही मैच. सो आई कॉल्ड दैट पर्सन एंड टोल्ड हिम, भैया विद ड्यू रिस्पेक्ट, यू आर डूइंग अ ग्रेट वर्क, यू आर क्रिएटिंग अ ग्रेट ब्रांड, आई लव द ब्रांड, बट मैं ये वाला आउटलेट कवर नहीं कर पाऊंगा बिकॉज इट डज नॉट मैच विद व्हाट वी डू, and because we have certain parameters, what we do, what we don't do. And he was graceful enough to accept it. We obviously transferred the money immediately back. तो गंदा एक्सपीरियंस कभी किसी ब्रांड का, आई कॉल्ड द पर्सन, ही सेड नहीं नहीं भैया सब ठीक है. दिसंबर 25 को मैं खुद चला गया वहां पे, एंड आई एट फूड एंड लाइफ की भैया, फूड में, सर्विस में, हर चीज में ना, दे हैव
cut down on so many things within a Hmm. month and a half of launch. We Hmm. came back and we actually, आज भी जाके आप देखोगे उस लिखा हुआ है नीचे that we recommended this restaurant because it was great, but now the quality has fallen and we today don't recommend this restaurant anymore. Okay. ऐसे दो रेस्टोरेंट क्या दूं, Okay. बट उसके बाद we very cautious about the place that we do. Okay. Awesome. Coming back to जो आपने अभी एक चीज शेयर करी हमारे साथ कि जी जी you actually recommended a brand and this happened. So I wanted to know one more thing. जैसे आपको, this is my personal experience, जी जी because आपको सब जानते हैं, right? And people and ऑडियंस नो यू, ओनर्स नो यू. आपको कभी ऐसा फील हुआ है कि जब आप डाइन इन कर रहे हो तो आपके लिए एक्सेप्शनल सर्विसेज हैं या आपके लिए कुछ स्पेशल बनाया है, लेकिन ऑन द अदर हैंड इफ somebody who is not a food blogger or a known personality like you, experiences different हैं, तो ऐसा कभी फील हुआ है, like is there a difference in the services, food quality and the way things are presented? देखो, पहली बात ना फूड क्वालिटी करते हैं। फूड क्वालिटी ना आपका जो बेस है ना, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। आप क्या कर लोगे, अगर मैं आया हूँ अब मक्खन एक्स्ट्रा, तो अपना पोर्शन साइज थोड़ा सा बड़ा कर दोगे। आप उसके अलावा क्या करोगे, यू कैन गो बैक एंड से कि अच्छा अब ये खाना हम अपने शेफ से, तो फूड क्वालिटी 95-90% रिमेन्स द सेम। ओनली थिंग इज बंदा उसमें तड़का अच्छा लगा देगा, वो इंश्योर करेगा कि भैया मेरे टेबल पे चीज आ रही है तो गर्म हो जाए, दैट इज इट। बट उसके अलावा कुछ ज्यादा चेंज कर नहीं सकता। Service it changes. I accept the fact and that is why we never write about service. So we Absolutely. प्लेटिंग में हमें दे रहे हो, जो प्रेजेंटेशन हमको दे रहे हो, आप वही अपना जनता को भी दो, या जो जनता को दोगे हमें दो, so that there should be no gap. Absolutely. I think you actually answered it really well because मेरे साथ भी ऐसा हुआ है एंड कोई कई लोग जो मेरी रिकमेंडेशन पे गए थे साथ भी ऐसा हुआ है, सो आई ऑलवेज टेल देम दैट दिस इज हाउ इट इज। बिल्कुल आपने एकदम बैंग ऑन चीज बताई। सो लास्ट आपने एक चीज मेंशन करी थी कि आपके कुछ पैरामीटर्स हैं या कुछ आप जब भी ब्रांड आपका ब्रांड का या जब भी आप कोई काम इनटेक ले रहे हो, सो मैंने आपके कहीं ब्लॉग में पढ़ा था कि देर आर फ्यू लाइफ मोटोज यू फॉलो। बात करने से ही बनती है, बात पूछने करने से में क्या बात जाता है, जाता थोड़ी है। पागलपंती भी जरूरी है, कीप वॉकिंग, ट्रैवल लाइट, माइंड को हल्का रखो, ना फालतू का गुंजन। तो बिल्कुल बिल्कुल। दीज आर, आई अंडरस्टैंड कि हर हर किसी की लाइफ में मोटोज होने जरूरी है, राइट? तो इनकी इम्पोर्टेंस एंड व्हाट वाज दोस थॉट्स एंड एक्सपीरियंसेस दैट मेड यू राइट दीज मोटोज फॉर योरसेल्फ? So these mottos are not written by me. These are all taglines हैं। जैसे ओके। बात करने से बात बनती है, एयरटेल की है। इट ओके। और जब जरूरत होती है सबकॉन्शियस माइंड से चीज सामने आती है। सो यस, बात करने से बात बनती है। पूछने में क्या जाता है, अगेन समथिंग दैट आई हैव नेवर शाइड आउट। मुझे लगता है कि भैया पूछने से अपना शर्म नहीं करनी चाहिए। इफ यू आस्क वंस यू विल बी कंसिडर्ड अ फूल वंस, इफ यू डोंट आस्क यू विल बी कंसिडर्ड अ फूल फॉर एवर। सो भैया पूछ लो, ज्यादा अच्छा है। एंड इट वर्क्स मोस्ट ऑफ टाइम्स, लाइक आई हैव ऑलवेज आस्क्ड एंड इट वर्क्स। और एटलीस्ट मेरे दिल को शांति मिलने में, भैया लाइफ यू गेट बोरिंग, so you should do something which is very different from what you have done earlier. I always say, always you should remember ki what was the last thing you did for the first time. यस। That should be a पागल। आप कहो जी मैंने अपना एरोप्लेन से छलांग मारी, पागलपंदी। आप कहो जी मैं फूड वॉक पे गया 3 घंटे, पागलपंदी। आप कहो जी मैंने सनसेट से लेकर सनराइज तक मैं अपना एक बीच पे, एक पहाड़ पे बाहर बैठा रहा, वो पागलपंदी है। मैं यूएस आ गया लास्ट वीक, दैट वाज द बिगेस्ट, that was the last thing I did for the first time, which was again a pagalpandi. I had no agenda, but everything fell into place in such a beautiful way. So I think कुछ ना कुछ पागलपंदी करती रहनी चाहिए। Does not नहीं तो अब 3-3 साल तक आई हैव सीन पीपल रगड़ते रहते हैं और जब फाइनली पूछने का टाइम आता है तब तक लेट हो चुका होता है। तीसरा है लाइक फिफ्थ है ट्रैवल लाइट। ट्रैवल लाइट इज सिंपल दैट वी कीप सो मेनी थिंग्स इन आवर माइंड कि हम खुद परेशान हो जाते हैं। जैसे लेट मी से कि आप गाड़ी चला रहे हो और अगर आपके विंड स्क्रीन पे बहुत सारी मिट्टी है, अपना धुआं धुंध है, आपको आगे की विजन दिखाई नहीं, सो आपको क्लीन रखो। व्हेन यू हैव सो मेनी थिंग्स इन योर माइंड, वो गुंजल बने हुए हर चीज का, तो आपको विजन आपकी क्लियर, आप सोच नहीं पाओगे। सो जितना आप उसको हटाते रहोगे, अच्छा ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, सो यू हैव अ क्लियर फोकस।
So I think that is what I mean by travel light, and it has been helpful for me. And I ensure that it keeps I keep that thing on track. एब्सोल्युटली मोटोज दो वो टैग्स की ब्रांड्स बट जिस तरीके से आपने उनको अपनी लाइफ में क्लैरिटी के साथ आई थिंक दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस देखो चिराग जी, यू लर्न फ्रॉम एवरीथिंग अराउंड। कहते हैं कि इवन द क्लॉक दैट इज नॉट वर्किंग टेल्स यू टाइम ट्वाइस अ डे। राइट टाइम दिखाती है ना 6 बजे हम्म पे गाड़ी, दिन में 2 बजे। सो आई थिंक आप हर एग्जैक्टली चीज़ आसपास, एंड आई लर्न फ्रॉम पीपल, आई लर्न फ्रॉम व्हाट पीपल डू, आई लर्न फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स, आई लर्न फ्रॉम दीज टैगलाइंस। आई एम वेरी हंग्री फॉर नॉट ओनली फूड, आई एम हंग्री टू लर्न ऑल्सो। एब्सोल्युटली एंड आपकी जो स्टोरीज होती है इंस्टाग्राम पे छोटी छोटी चीजें जो लोग ऑब्जर्व नहीं करते हैं उनको देख के जो खुशी मिला लाइक यू हैव योर परसेप्शन एंड यू शेयर इट विद पीपल आई थिंक वो बहुत ही जैसे मैं मेरे मेरे फीड पे आपकी स्टोरी हमेशा जब मैं उठती हूँ सुबह तो आती है हमेशा एंड समटाइम्स इट रियली रिफ्लेक्ट्स कि यार ये साइड ऑफ पिक्चर एंड द वे यू टेल अबाउट योर स्टोरीज इट्स एब्सोल्युटली रियली fascinating and spread smile basically थैंक यू। so oh थोड़ा प्यार से मैं कहा, लव द कोटेशन ऑन योर टी शर्ट, कहने he says yes। मैंने पहले क्लिक की, उसके बाद मैं खुद खड़ा हो गया। एंड bro, and then again we get small things, they're around you. I hope you know how loved you are, and I think कहानियां, प्यार, इश्क, मोहब्बत सब कुछ आसपास है। यू हैव टू जस्ट आपको अपने आंख, नाक, कान सब कुछ खुले रखने हैं, एंड यू शुड बी एबल टू एक्सेप्ट इट। आप उसको हर चीज को लाइफ में हम ना भागते भागते देखते नहीं है, बट जब देखते हैं तो पता लगता है कि सुंदरता कितनी है। एंड गॉड लाइज इन डिटेल्स, तो छोटी चीजों में ज्यादा प्यार बना होता है। दैट इज व्हाट आई डू, जस्ट दैट इज इट। कोई ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं है। एफर्ट तो करनी नहीं होती। आई थिंक आई ऑल्सो यस्टरडे समवन टोल्ड मी, मैंने कोई स्टोरी, बंदर वाली फोटो, बंदर वाली स्टोरी थी एक। बंदर ने एग्जैक्टली मैंने देखी थी वो किसने लिखा कि अपना स्टोरीज कम टू दोज हु वैल्यू देम। तो शी सेज कि आप क्योंकि अपना आप इन चीजों को अप्रिशिएट करते हो तो आपको दिखती भी है, दे आल्सो कम। हम्म आई थिंक दैट वाज आल्सो ट्रू। बिल्कुल एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल चलो। क्वेश्चन मेरे से लोग जो पूछते हैं तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ सोशल मीडिया में बहुत टाइप के लोग होते हैं हम्म, कुछ आपको बहुत प्यार देते हैं कुछ आपको हेट भी हम्म, एंड इट इज ऑन यू वेयर यू लुक एट बट कोई ऐसा इंसिडेंट बीइंग आप एक सेलिब्रिटी नोन फेस हो कभी आपके साथ ऐसा कोई आपको इंस्टेंस याद हो कि कुछ बैकलैश मिला हो कभी किसी सोशल मीडिया पे किसी ऑडियंस व्यूअर से या किसी ब्रांड से ऐसा कभी कुछ आपके साथ हुआ है ब्रांड से तो कभी नहीं मिला। ओके ब्रांड से कभी नहीं कुछ मिला। हम्म आई टेल यू, ये जो लोग बोलते हैं ना पीछे से, मोस्ट ऑफ देम आर अननोन फेसेस, छुपे हुए हम्म चेहरे, और जिनकी कोई वैल्यू नहीं है। जैसे ही कोई एक अपना स्ट्रांग बंदा होगा या कोई ब्रांड होगा, देन दे थिंक बिफोर दे स्पीक, इवन इफ हम्म दे वांट टू स्पीक समथिंग। हम्म लोग होते हैं अननोन फेसेस, और रैंडम लोग हैं, फ्रस्ट्रेटेड फ्रॉम लाइफ होते हैं। समटाइम्स दे मे बी राइट। अब कोई मुझे मोटा बोल, मैं मोटा हूँ, मतलब इसमें तो कोई चेंज नहीं हो सकता। सो दीज थिंग्स रियली डोंट बॉदर मी। बॉदर तब करते हैं जब बंदा साथ में तो गाली लगा देता है। दैट हैपेंस हम्म रियल, दैट हैपेंस। और देखो आप ना, जो दो तरीके हैं, आप या तो कहो कि भैया मेरा छतरी खराब नहीं होगी, मेरे को अपनी छतरी, इसलिए मैं धूप और अपना बारिश में नहीं निकलूंगा। और हम्म दूसरा आप कहोगे भैया मैंने छतरी ली इसी काम के लिए, या मेरे को बाहर तो निकलना और वेयर एंड टेयर होगा, कोई बात नहीं, लेट अस एक्सेप्ट द फैक्ट। सो आई एक्सेप्ट द फैक्ट दैट इफ यू हैव पुट योर लाइफ ओपन, और योर choices in life open in the public, then you also accept the fact कि भैया दुनिया उस पर जज करेगी, वो ओपिनियंस बनाएगी। ओपिनियन गलत है उनका, सही है, वो मैटर नहीं करता, बट ओपिनियन रखेगी। एंड क्योंकि आज आप सबको ओपिनियन पेश करने का मौका है, थैंक्स टू फोन, पीपल वुड से एनीथिंग एंड एवरीथिंग। सो आई थिंक अपने को बॉदर नहीं करना चाहिए ज्यादा, बिकॉज अगर आपको कोई गाली दे रहा है तो वो हो नहीं जाते हो।
दूसरी बात ये है कि वो आप ये कहो कि आप सोशल सर्विस कर रहे हो, बिकॉज़ वो बंदा अगर आपको गाली नहीं देता तो अपने घर में अपने बच्चों को, अपने पेरेंट्स को, अपनी वाइफ को, अपने हस्बैंड को। दूसरी बात क्या है, यू हैव द बिगेस्ट पावर ऑफ ऑल, यू कैन जस्ट ज़्यादा शोर मचा रहे हो तो आप उसको बस ब्लॉक कर, तो ऑटोमेटिकली वो चीखता चिल्लाता रहे अपने घर के अंदर, कुछ कर नहीं सकता ना। सो यू हैव दैट पावर ऑफ अपना से ब्लॉकिंग दैट पर्सन। वो ना हो तो आपको दिक्कत है। अब आपने अपना घर में से यू हैव अ कलीग या बॉस है, वो आई जाता, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, आपको जॉब छोड़ के जानी पड़ेगी। बट हेयर तो आपको एक सेकंड लगेगा, बटन दबाया, बंदा चुप हो गया, लो भैया काम खत्म। एंड आई डू दैट वेरी ऑफन, आई यूज माय ब्लॉक बटन लैविशली। पीपल वुड जस्ट कम एंड से बकवास फॉर एनी, विदाउट एनी रीजन। I love the way you actually Having said that, handle. sorry to cut it short, but having said that, let me also tell you, many people create content in such a way कि उनको backlash आए, because the more backlash, the more negative comments, the more engagement increases. So there's some Mm. people who are happy with that, and to each his or her own. Exactly. I think that comes down to the point that, what is your goal with your content. जैसे आपने बोला, you create content because you love doing it and you want to spread happiness, Right, smiles, कि right, right. आपको फीलिंग क्रिएट करानी है कि अगर आप खा रहे हो तो सामने वाला भी आपके साथ। सो बस आई बस थिंक दैट कम्स डाउन टू जो विजन आप, तो मुझे लगता है कि आपकी एक व्यू पॉइंट उसमें फॉर समबडी हु इज स्टार्टिंग आउट, जी जी। specifically a food blogger or content creator in general. हम्म। So what would be those 3 tips? Because ये बहुत ही repetitively asked question होता है कि people are afraid to be on camera, even though they are okay and they meet a lot of people and they are good with talking, but camera के सामने अपने आप को present करना. So what would be those 3 tips that you would give to somebody who is starting out as a content creator? देखो, सबसे पहले तो मैं बोलूंगा कि भैया, जो मैंने पीछे बोला, कीप वॉकिंग। आई हैव सीन सो मेनी राइट पीपल, कंटेंट क्रिएटर्स, विच जस्ट फेड ऑफ और यू नॉट इवन स्टार्ट बिकॉज दे नेवर ट्राइड। वो उन्होंने करना नहीं किया, मैं हफ्ते में एक डाल दी, महीने में एक डाल दिया कुछ, दैट डज नॉट वर्क। यू हैव टू डू इट ऑन अ वेरी रेगुलर बेसिस। और जब आप करोगे तभी तो इम्प्रूव करोगे। पहली बार तो दाल मखनी बना के बेस्ट नहीं, 20 बारी बनाओगे तो दाल मखनी बेस्ट बनेगी, उसके अंदर कंसिस्टेंसी आएगी आपके उसके अंदर। बट अगर आप 2 बारी ट्राई करो और 2 बारी लोगों को अच्छी नहीं लगी और आपने छोड़ दिया, देन probably you could have become the best dal makhni chef, but you didn't because you did not try enough. आपको लगा नहीं, because कहते हैं perfectionism is the enemy of good. तो आप परफेक्शनिज्म के चक्कर में गुड भी चीज नहीं बना पाते हो। Hmm. Second thing that I would say is that be yourself. We get we get tempted by copying others कि अच्छा ये Mhm. ऐसा कर रहा है, मैं भी ये करता हूँ। बट जब आप करोगे ज्यादा, जो हम फर्स्ट पार्ट करें, जब आप करते रहोगे तो यू विल फाइंड योर वे, व्हाट मेक्स यू हैप्पी, व्हाट इज द कंटेंट दैट टिक्स विद यू, व्हाट इज योर ऑडियंस मैचेस यू विद, और ऑटोमेटिकली you become yourself, because people don't want to see another Amitabh Bachchan, people don't want to see, say, another apna Sri Devi. People want to see you, if they want to see you, because you add your unique perspective. आप किसी और को करोगे तो Mhm. भाई वो सीखेगा। I think Absolutely. that is second. Third, I would say that I'll use this as a combo point, that ensure that you create credibility and a personal brand. Hmm. More than Hmm. what, क्योंकि अब the right kind of audience is watching that content for the right purpose Hmm. and actionable है। Say person, अगर आप किसी brand के अंदर काम करो, them happy, then it is Hmm. just one of the content creators. So if I have to sum it up, I'll say, consistency is important. Second is very important, is that you be yourself, and third is you focus on your credibility and your personal brand. Absolutely. Thank you for sharing that. That gives, I think ये क्योंकि अब सोशल मीडिया और इंटरनेट ने बहुत लोगों को अपॉर्चुनिटीज दी हैं, तो आई थिंक राइट काइंड ऑफ एडवाइस प्लस आपका एक्सपीरियंसेस जैसे आप बताते हो, तो जब लोग उस चीज को फॉलो करेंगे, आई थिंक world will be a better place because they will get opportunities, more people will be involved, more people will meet like minded people मिलेंगे और अच्छा और content बनेगा। तो thank you for sharing that. Thank you. And I loved having you on this podcast. Thank you so much for your time. And आप थोड़ा सा जल्दी से बता दो कि आप कौन-कौन से प्लेटफॉर्म्स पे कंटेंट क्रिएट करते हो सो दैट एवरीबॉडी नोज आप कौन-कौन से प्लेटफॉर्म पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, कंटेंट क्रिएट करते हो। Instagram, YouTube and Facebook. सब पे @Mr. Tikku, MISTERTAKKU, एंड वी फोकस एट, हमारा जो फोकस है वो इंस्टाग्राम है। इट इज नॉट ओके। फेसबुक, इट इज नॉट यूट्यूब, बिकॉज व्हेन यू ट्राई टू कहते हैं ना,
when you try to make everyone happy, you make no one happy. So we Hmm. like yeah, Instagram focus करके चलते हैं, and then उसको ही same content YouTube और Facebook पे. For someone it is YouTube first, for it can be Facebook first. So you have to take your own decision what kind of content you want to create. But if you want to see what we do, we are Instagram first brand, एंड इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो करो, बिकॉज जहाँ पे स्टोरीज भी आती है वहाँ पे डेली एक रील आती है, एंड यूट्यूब फेसबुक पे अपना कभी का थोड़ा कम जाता है. बट दैट इज ऑल्सो नाउ वी हैव अ व्हाट्सएप चैनल ऑल्सो, जहाँ पे हमारी आप मिस भी कर जाते हो हमारी रील, यू कैन जस्ट ज्वाइन द व्हाट्सएप चैनल, यू सर्च फॉर मिस्टर टिक्विन व्हाट्सएप चैनल. वहाँ पे और भी काफी बीटीएस स्टोरीज गेट टू Okay. नो. वी डू लॉट मेनी कॉन्टेस्ट, वी डू लॉट मेनी डिस्काउंट ऑफर्स ऑल्सो, जो अपना ओके ओके. हैविंग सेड दैट कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक पे तो हो, लेकिन यू आर इंस्टाग्राम फोकस्ड. सो व्हाट मेड यू डिसाइड? इफ आई हैव टू टॉक अबाउट यूट्यूब, यूट्यूब इज अ प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन मोनेटाइज योर कंटेंट. ऑन द अदर हैंड, इंस्टाग्राम पे आपको इंस्टाग्राम मोनेटाइजेशन का ऑप्शन बहुत ही ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है. So, what was your decision and why did you actually chose Instagram over other platforms? देखो वी रियलाइज कि फेसबुक भी अच्छा पैसा देता. वी हैव मेड सम गुड मनी ऑन फेसबुक. फेसबुक में 3 मिनट से ज्यादा की वीडियो जाती है. यूट्यूब मेनली इट इज ऑल अबाउट हॉरिजॉन्टल, एंड इट इज अबाउट अगेन 5 मिनट्स प्लस वीडियो दैट गोज विच इज मोर इनटू स्टोरी टेलिंग. Mm-hmm. वे व्यूज बहुत ज्यादा तब जाके आपको मिलता है रेवेन्यू. वी हैव अगेन मेड गुड रेवेन्यू आउट ऑफ यूट्यूब ऑल्सो. Mm-hmm. बट वहां पे फिर आपको मेहनत बहुत करनी है. यू हैव टू हैव लैक्स ऑफ व्यूअर्स, मिलियन ऑफ व्यूअर्स. आते हैं कई बार नहीं आते हैं. Hmm. हमने इंस्टाग्राम में चूज किया बिकॉज वी रियलाइज कि इंस्टाग्राम में जो पैसा है ब्रांड देता है, एंड Hmm. वी रियलाइज दैट द काइंड ऑफ ब्रांड दैट वी हैव, द काइंड ऑफ वर्क दैट वी डू, एंड ब्रांड से पैसा अच्छा मिलता है. you Okay. know so we realized ki, okay, with our kind of personality, with our work that we have done, with our kind of 12 years of experience, we knew that if we are doing the right work, it will be very easier for us to attract brands, or for the brands to look at up to us. And exactly that happened. We are happy that strategy worked for us. Hmm. We maintain that respect, maintain our rate, and Instagram पे अगेन फोकस फर्स्ट है. पता है इंस्टाग्राम की ऑडियंस को क्या चाहिए, एंड Hmm. वही कंटेंट हम बाकी जगह पे डालते हैं. बट हमको पता है कि पैसा हम जो है ब्रांड को इंस्टाग्राम चाहिए, एंड देन दे कम एंड पे अस, आई कैन से अ गुड अमाउंट. Absolutely. Loved it. इफ यू हैव टाइम. जी. हम्म. दे आस्क कि अब हमें पता है कि अगर हम क्रेडिबिलिटी बिल्ड करेंगे तो हमें कोलैबोरेशंस मिलेंगी. बट व्हेन यू आर स्टार्टिंग आउट, यू हैव टू बिल्ड क्रेडिबिलिटी, एंड कोलैबोरेशन से भी क्रेडिबिलिटी बिल्ड होती है. सो इट्स लाइक चूजिंग व्हाट कम्स फर्स्ट, चिकन और एग्स. तो आपके क्या व्यूज हैं उसमें? अगर फॉर समबडी हु इज स्टार्टिंग आउट, हाउ वुड यू, इफ यू आर स्टार्टिंग आउट, वुड have that strategy for your collaborations? So for me, it is simple one thing: first deserve, then desire. ताकि अपना ब्रांड से बात करोगे ना. So again, I always say that पूछने में क्या जाता है. So I still stay by that कि भैया I don't do it because the stage that we are, we really don't need it right now. अगर हमें किसी को बताया कि हमें यार ये कर रहे हैं और इस ब्रांड से ये कर सकते हैं, we will reach out Hmm. to them. But as of now, we have not. But to answer your question, you have to just keep doing work, create your credibility. And मैं आपको simple, बहुत आसान with experience, but of thousands of people I've seen across myself is, when you do good work, people are watching you, brands are watching you, the agencies are watching you, and as soon as they see you're doing good work, and it is not just good numbers, it is all the five ticks: good quality content, good shoot, right kind of storytelling, good personal brand, आपकी audience अच्छी है, your numbers are decent, they will reach out to you. People, Absolutely. brands are you as much as you need them, but they will only need you when you think that you are fulfilling a need that they have. राइट राइट. आपने एक बहुत ही अच्छा पीस ऑफ एडवाइस दिया है फॉर बडिंग एज वेल एज ग्रोइंग, या जो ग्रोथ स्टेज पे भी हैं. सो थैंक यू फॉर आपकी एडवाइस एंड Welcome. ये एक्सपीरियंसेस आपके शेयर करे आपने. एंड आई एम ग्लैड आई वाज एबल टू गेट यू ऑन माय पॉडकास्ट एंड पिक योर ब्रेन्स ऑन क्वेश्चंस, एंड लव्ड हैविंग यू. थैंक यू सो मच. Thank you. नमस्ते.